Today we are going to discuss alternating current, and this video will be very useful for the students writing CBSE exam, CUET and that IIT NEET. So without any delay, let's start with the AC. For the difference between AC and DC, the link has been provided in the video description. So let's start with the AC current. This is the alternating current. First we should know that how much is the average value of AC. We do not calculate average because average value of AC over complete cycle is 0. So first task is to prove that average value of alternating current is 0. पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, AC करंट दिखता कैसा है, मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं इसको, पहले वो सीखना है. उसके बाद हम देखेंगे एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या इसकी एवरेज वैल्यू आती है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं AC करंट. AC करंट कैन बी represented by I equals to I naught sin omega t. I naught is the peak value of AC, I is RMS or the current. RMS means root mean square current, omega t is the phase and sin is the function here. So this is the representation of AC current. So we will start with the average value of the AC. So now first we should know the formula of calculating average value of any function depending on time. So f of t, if it is a function of time, then average value can be written like this, and average value of function is equal to 1 by t 0 to t ft dt. T is the time period of the function. So we have I equals to I naught sin omega t. This is the function. So we will find average. We know that the average value of the sine is 2 pi. So let's calculate average value of I equal to 1 by t I naught sine omega t dt 0 to t. It will be equal to 1 by t 0 to t integration of sine is minus cos omega t, and integration of omega t is 1 by omega 0 to t. Let's put the limit. Average value of AC equals to minus I naught by t and omega bahar, cos omega means 2 pi by t into capital T minus cos 0. Now t to t cancels and cos 2 pi. I average equals to minus I naught by omega t into cos 2 pi is 1 minus cos 0 is 1 equal to 0. So we have proved that average value of AC is 0. So we need RMS value. If I calculate the root mean square value of current, it will be not equal to 0. I RMS. RMS stands for root mean square. If I find square first, then find average or mean, then root, I will get positive. Why the average value of AC is 0? We can see from the graph. Plus half, then second half, again plus half, second half. Average is 0, plus minus total 0. If I calculate the square, then root, it will be a positive number. Okay. Then after, we will send this AC current to resistor, to inductor, then to capacitor. First, let's discuss this AC supplied to the resistor. Okay, AC voltage to a resistor. So let's consider a circuit containing a resistor R and AC voltage of the form E equals to E naught sin omega t. यहाँ ओमेगा फेस हो गया, E naught मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ द AC, और E यहाँ RMS, यहाँ R हो गया. करंट यहाँ से फ्लो करेगा I. अप्लाइंग फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ.
क्या मिलेगा हमको, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इक्वल टू 0 और आई आर इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, देन आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी और आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा। यहाँ से वोल्टेज हमको दी होगी, दिस वोल्टेज इज सप्लाइड टू द रजिस्टर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। करंट हमारे पास आ गया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज ई नॉट बाई आर। नाउ द सेकेंड टास्क इज टू मेक द फेजर डायग्राम, then graphical representation and finding the phase difference if any exist in the diagram or circuit. So second thing is representation, graphical. From this I and V हम देख सकते हैं दोनों सेम फेस में हैं। ये मान लिया V हो गया या E बोल सकते हैं इसको हम, और ये E नॉट मैक्सिमम और करंट भी सेम फेस में है, तो ये आ गया। फेस क्या है, ये ओमेगा टी इसका फेस है, करंट का फेस भी ओमेगा टी है, दोनों सेम फेस में है, बट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विल बी लेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज ई नॉट बाई आर, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, दिस इज आई नॉट। सो आई और ई दोनों सेम फेस में है, यहाँ एंगल हो गया ओमेगा टी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। अब बनाना है हमको इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया फेजर डायग्राम। यहाँ वोल्टेज ओमेगा टी और इसी लाइन पे जा रहा है हमारा करंट, ये हमारा वी हो गया या ई बोल सकते हैं इसको, और यहाँ हो गया आई। ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम, इधर आई और वी। डन। तो हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन एसी वोल्टेज इज सप्लाइड टू द रजिस्टर। तो हमें पता लग गया यहाँ से कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं जब वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है रजिस्टर के साथ। उसके बाद हमें निकालना होता है पावर कितना है यहाँ पे, और पावर के बाद एवरेज पावर। इफ़ आई कैलकुलेट द पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है मेरा, पावर इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज। सो पावर आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पी इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ये पावर आ गया। अब निकालना है मुझे एवरेज पावर, फॉर्मूला लगा दो एवरेज का। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, आई नॉट ई नॉट बाई टी करना पड़ेगा, 0 टू टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वेयर को खोल लेंगे हम लोग, कॉस की टर्म में लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो एवरेज पावर फॉर्मूला आ गया आई नॉट ई नॉट बाई टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई टी, ये आइडेंटिटी है इसकी। फिर से अलग अलग करेंगे इसको, तो एवरेज पावर आ गया आई नॉट ई नॉट बाई 2t, इंटीग्रेशन अलग से करेंगे 1 का इंटू डी टी 0 टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी 0 टू टी यहाँ डी टी। एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट बाई 2t, इंटीग्रेशन 1 का हो गया t यहाँ पे, और cos 2 ओमेगा t इसका पूरा हो गया 0, ये आइडेंटिटी है। तो ये बन गया t से t कैंसिल हो गया, एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट बाई 2। ओके, इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है हमको, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2 इंटू ई नॉट बाई √2। 2 को लिखा √2 इंटू √2, ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमको चाहिए क्या, एवरेज पावर इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं आई आर एम एस, इसको बोलते हैं ई आर एम एस। ये आ गई हमारी पावर एवरेज इन रजिस्टर। तो ये टॉपिक हमारा 3 नंबर का पूरा हो चुका है। हमें क्या दिया होगा, वोल्टेज हमें दी होगी, करंट निकालना है, करंट का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है वो बताना है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फेजर डायग्राम के थ्रू बताना है। देन आफ्टर पावर एंड एवरेज पावर, ये हमको प्रूव करने को बोल सकता है कि प्रूव करो एवरेज पावर, ये आएगी। तो फर्स्ट पार्ट इसका रजिस्टर वाला टॉपिक फिनिश हो गया। ओके, सो अभी हमें इस एसी करंट को सप्लाई करना है इंडक्टर के पास।
तो इंडक्टर में क्या होगा, अब इंडक्टर में लगाते हैं AC वोल्टेज टू एन इंडक्टर। अभी क्या होगा, फिर यहाँ इंडक्टर लगा दिया, सेम करंट AC लगा दिया, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I। फिर से अप्लाइंग KVL, तो यहाँ कितना EMF है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और EMF इन द इंडक्टर कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फैराडे लॉ से हमने निकाला हुआ है पिछले चैप्टर में। तो अभी क्या करना है, इक्वल टू जीरो, हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। करना पड़ेगा हमको निकालने के लिए आई, तो डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आई इतना आ गया, ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। सो आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस ओमेगा टी विद माइनस साइन, एंड ओमेगा टी के लिए ओमेगा। ये आ गया हमारा करंट। नाउ I इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। यहाँ चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इधर। सो I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ एक माइनस साइन चल रहा था। अब यहाँ आई नॉट को क्या लिया है मैंने, ई नॉट बाई एक्सएल, और एक्सएल क्या है, ओमेगा एल। एक्सएल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाउ माइनस कॉस ओमेगा टी हम लिखेंगे साइन की टर्म में, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, बिकॉज माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब हमको अगर फेस देखना होगा, ओमेगा टी माइनस 90, वोल्टेज से क्या था, ओमेगा टी, इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट लैग कर रहा है 90 से, करंट लैग्स वोल्टेज बाई 90 और पाई बाई 2 एंगल। देन आफ्टर हमें निकालना है इसका ग्राफ और फेजर डायग्राम। अगर हम फेजर बनाते हैं तो इस तरह ये वोल्टेज हो गई E, यहाँ ओमेगा टी, और करंट चल रहा है 90 से पीछे, तो यहाँ 90 एंगल इधर करंट। ग्राफ अगर बनाना होगा तो ये वोल्टेज और करंट 90 से पीछे है, तो ये करंट। इसके पैरेलल जाके दिस वे, ये करंट हो गया और ये वोल्टेज, ये बन गया। मैं बार बार इसको ई लिख रहा हूँ, पर भी आ जाता है बार बार। ई नॉट, इस तरफ ई है, इस तरफ आई है, यहाँ आई नॉट है। ये बन गया इसका ग्राफ। उसके बाद फिर से हमें क्या करना होता है, पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए क्या करना होगा, करंट इंटू वोल्टेज, आई इंटू ई। आई की वैल्यू है मेरी कितनी, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या करना है हमें, माइनस, प्रॉब्लम हमें यहाँ आने वाली है कि मैंने करंट की वैल्यू ये वाली ली है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लास्ट वाली फाइनल वैल्यू करंट की मैंने नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें क्या है, साइंस तो है बट ओमेगा टी माइनस 90, तो यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन से। बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। अभी बाद में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन भी आगे करना है, तो इसके अच्छा है कि हम पहले से ही सॉल्व करके चलें, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो P हो गया मेरा माइनस आई नॉट ई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई
2 से डिवाइड क्यों किया, ये बन गई आइडेंटिटी 2 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, पी इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। अब निकालना है हमको एवरेज पावर, तो 1 बाई टी, यहाँ आई नॉट ई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और इसकी वैल्यू होती है 0। पीछे वाले डेरिवेशन में हमने अभी ड्राइव किया था। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि साइन की 2 ओमेगा टी में 0 कैसे आती है। यहाँ कर सकते हैं इसको प्रूफ, 1 बाई टी 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसको चाहे हटा दो यहाँ से, 0 टू टी साइन का हो गया माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, नीचे आ गया 2 ओमेगा, और लिमिट लगा दी मैंने 0 टू टी, तो ये कितना हो गया, माइनस साइन था बाहर, माइनस कॉस 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू लिमिट कैपिटल टी माइनस कॉस 0, टी टी कैंसिल, कॉस 2 इंटू 2 पाई कॉस 4 पाई माइनस 1 बाई 2 ओमेगा कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0। नाउ कॉस 4 पाई इज़ 1, कॉस 0 इज़ 1, सो ये हो गया 0। सो पावर कितना आ गया, ये प्रूव हो गया मेरा 0 आ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया था यहाँ पे कि साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ओमेगा 2 टी कॉस ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी, सबका आएगा एवरेज वैल्यू 0, बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज़ 0। तो सेकेंड पार्ट हमारा हो गया AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। यही काम हमको करना होता है, ये प्रूव करने को आएगा, प्रूव दैट एवरेज पावर इन एन इंडक्टिव सर्किट इज 0 एंड दीज आर द आइडल केसेस। जो हम ये काम कर रहे हैं रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, तो ये क्या है, हम ले रहे हैं आइडल केस। तो ये क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आइडली कैपेसिटर है, आइडल रजिस्टर है, आइडल इंडक्टर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इज AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन कैपेसिटर। Okay, now AC voltage to a capacitor. Same process, connect circuit with AC, E naught sin ओमेगा टी, यहाँ से करंट I, ये कैपेसिटर C। तो वोल्टेज के लिए KVL लिखेंगे हम लोग, अप्लाइंग KVL। सो वी विल हैव E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस Q बाई C, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज Q बाई C। नाउ Q बाई C इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और Q निकाल दिया तो C E नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ वी नीड ए करंट, सो dq by dt I equals to this. So C constant, E naught constant, differentiation of sin omega t. So we have I equals to C E naught, differentiation of sin is cos omega t, और ओमेगा टी का आ गया ओमेगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा C E naught cos ओमेगा टी। अब क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ लिखते हैं I इक्वल्स टू E नॉट बाई XC cos ओमेगा टी। अब XC कहाँ से आ गया, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो XC की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई ओमेगा C। नाउ I इक्वल्स टू I नॉट cos ओमेगा टी,
और यहाँ पे आई नॉट क्या है, ई नॉट अपॉन एक्सी। अब हमारा आंसर आ गया कॉस की टर्म में। तो कॉस की टर्म से हमें क्या करना है, हमें चाहिए साइन फंक्शन, वोल्टेज साइन में है तो करंट भी साइन में चाहिए, तभी हम फेस रिलेशनशिप बना पाएंगे, तभी हम फेजर डायग्राम बना पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको साइन में ले जाओ वापस। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये हमारा यहाँ से पता चल रहा है कि फेस ऑफ करंट इज ओमेगा टी प्लस 90 और फेस ऑफ वोल्टेज कितना है, ओनली ओमेगा टी। तो यहाँ दिख रहा है मेरे को करंट लीड कर रहा है बाई पाई 2। तो पहला काम हमारा यहाँ हो गया। अब लीड करेगा तो हमें ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ यहाँ बना दो। पहले फेजर डायग्राम, इधर वोल्टेज ई, यहाँ ओमेगा टी, करंट आगे चलना है 90 से तो करंट इस तरह बना दिया, ये एंगल 90, ये हो गया हमारा करंट। ग्राफ बनाते हैं इसका हम, तो ये वोल्टेज और यहाँ करंट चलेगा आगे, तो इस तरह से बन गया करंट। ये आई नॉट और यहाँ ई नॉट, दिस इज ग्राफ फॉर ई, दिस इज ग्राफ फॉर आई। ये हमारा फेजर डायग्राम भी हो गया। अब हमें चलना है पावर। तो पावर का फॉर्मूला फिर से है मेरा करंट इनटू वोल्टेज, इसका मतलब आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट, फिर से क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, आइडेंटिटी बनाने के लिए। यहाँ 2 पावर आ गया आई नॉट ई नॉट बाई 2 और ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी, पावर आ गई। फिर से हमें क्या करना है, एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या सिंपल है, एवरेज पावर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी 1/t, यहाँ पावर इंटू डी टी। सो एवरेज पावर इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी। पावर की वैल्यू क्या है, ई नॉट आई नॉट बाई 2, जो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसको बना दो आई नॉट ई नॉट बाई 2 भी है, और फिर है साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साथ में डी टी कर दिया। आप कर देंगे इसको इंटीग्रेट, ई नॉट आई नॉट बाई 2t इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ओमेगा 2 ओमेगा टी का हो गया 2 ओमेगा, ये आ गया। तो इसको बाहर ले आते हैं, एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट 2t इंटू 2 ओमेगा, यहाँ बचेगा कॉस 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट टी हो गया माइनस लोअर लिमिट 0, ये कैंसिल्ड। एवरेज पावर माइनस आई नॉट ई नॉट बाई 2t इंटू 2 ओमेगा, यहाँ बचा 1 माइनस 1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 0 भी 1, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब एवरेज पावर इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें, समराइज़ करते हैं, तो एवरेज पावर रजिस्टर में कितना आया, ई नॉट आई नॉट बाई 2 आया। एवरेज पावर इन इंडक्टर 0 इक्वल टू एवरेज पावर इन कैपेसिटर। नाउ इंडक्टर कैपेसिटर के अंदर हमने पावर निकालते हैं एवरेज, और वो आ रहा है 0। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज हैविंग 0 पावर, दैट मीन्स वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मीन्स द करंट विच कंज्यूम्स 0 पावर or no power, that is called wattless current. So the current flowing in a pure inductive or capacitive circuit is called wattless current. So now the next part is LCR. आप तीनों को कंबाइन करेंगे एक साथ। ये हमने पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, एक टॉपिक बनाया हुआ है पूरा LCR का। फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। LCR सर्किट क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी चलते हैं हम लोग LCR सर्किट की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया अभी तक, क्योंकि अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस यहाँ पे चैप्टर के बाद। और अभी चैप्टर की हम लोग 1 शॉट वीडियो बनाने वाले हैं 12th क्लास के। तो चलते हैं, चलो LCR सर्किट की तरफ। LCR सर्किट क्या है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक चैप्टर का है, जो पूरे चैप्टर को अपने अंदर ले लेता है। LCR का मतलब हो गया L, C एंड R, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर एक साथ लगाएंगे हम लोग,
और ये लगाएंगे हम लोग सीरीज़ में। फिर क्या करना है, हमको निकालना है इम्पीडेंस क्या आएगी इसके अंदर, कितना टोटल रेजिस्टेंस है, पावर निकालना है और बाकी सारे फैक्टर्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं एज यूजुअल। एल सी और आर, सेम ईएमएफ लगा दिए यहाँ पे भी। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से करंट आई जाता है, यहाँ इंडक्टर L हो गया, C और R। तो यहाँ लिखना है पहले हमको लोग, यहाँ V L हो गया, ये V C हो गया, ये V R। नाउ V L वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। वी सी कितना होगा, Q बाई सी, और वी आर कितना हो गया, आई आर। तो हम लिखेंगे के वी एल अप्लाइंग के वी एल इन दिस लूप। so we will write E naught sin omega t माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि करंट के साथ मूव कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव वोल्टेज। तो इसके बाद हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर, और वी कैन राइट ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड इनटू वी एल वी सी वी आर। ये इसकी इक्वेशन आ गई यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी हमारा जो इसका सिस्टम है सॉल्व करने का, हमें लगाना है यहाँ फेजर डायग्राम मेथड, जिससे हमें निकालना है इसकी इम्पीडेंस। तो फेजर डायग्राम यहाँ ड्रा करते हैं हम लोग। इसका फेजर बना लिया मैंने। यहाँ ले लिया मैंने करंट, इस तरफ बी एल, यहाँ वी सी, इस तरफ वी आर। ऐसा क्यों बनाया हम लोगों ने, पहले क्या देखते हैं। इस तरफ करंट लिया है, वी एल इज़ द वोल्टेज इन इंडक्टर। हमें ये पता है कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज 90 से आगे चलती है तो आगे गई, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज 90 से पीछे रहती है तो वोल्टेज पीछे कर दिया। और लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट वी एल ग्रेटर देन वी सी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, यहाँ आ गया वी एल माइनस वी सी। अब एक वोल्टेज वी एल माइनस वी सी ऊपर है, एक वोल्टेज वी आर इस तरफ है, दोनों का रिजल्टेंट मान लेते इधर गया, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड नेट करंट। अब क्या करना है, यहाँ बना देंगे ट्राइंगल। ये साइड वी एल माइनस वी सी है, इस तरफ वी आर है। मान लीजिए ये ओ है, ए है और ये बी है। हमें निकालना है नेट ईएमएफ, जो ई हमारा यहाँ पे है ये वाला। अब हमें करना क्या है, चलते हैं आगे यूजिंग पाइथागोरस। क्या करेंगे हम लोग, ए ओ स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। ए ओ की वैल्यू हमें दे रखी है ई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वेयर प्लस ओ बी इज वी आर का होल स्क्वेयर। बहुत सिंपल तरीका है एलसीआर को सॉल्व करने का। फेजर डायग्राम जिसको बनाना आ गया आराम से इंपीडेंस निकाल देगा, और 90% क्वेश्चन इंपीडेंस पे ही आएगा एलसीआर से। क्या करना है, अब ए ओ स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ई स्क्वेयर इक्वल्स टू वी एल कितना होता है, यहाँ लिखते हैं वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, वी आर इक्वल टू आई आर, वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी। तो पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू, ये हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वेयर प्लस आई आर का स्क्वेयर। आई स्क्वेयर कॉमन निकालते हैं तो क्या हमारे पास क्या बचेगा, ई स्क्वेयर इक्वल्स टू आई स्क्वेयर बाहर, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर ऑन टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। सो ई विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर हट जाएगा यहाँ से, और इनके ऊपर रूट लग जाएगा ये वाला, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर। अब इसको ले आते हैं नीचे, ई अपॉन आई, ई एम एफ अपॉन करंट, ये बन गया, हम इसको बोलते हैं जेड,
और इसका फॉर्मूला आ गया अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस जेड इज नोन एज द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की हम बात करते हैं तो इम्पीडेंस यहाँ लिखते हैं जेड से नोट करेंगे। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज या ओनली एलसीआर हम लिख सकते हैं सर्किट। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस सिंस इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इट इज एसआई यूनिट, इट्स यूनिट इज ओम ओनली। ये हो गया, तो हमारा काम हो गया इम्पीडेंस निकालने का। इम्पीडेंस के बाद हम निकाल सकते हैं यहाँ पे करंट कितना आएगा। तो करंट अगर निकालेंगे तो I इक्वल्स टू ई अपॉन जेड इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ विल टॉक अबाउट फाई फेस एंगल। फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन सी tan phi equals to VL minus VC upon VR. Taking I common, we can write I XL minus XC upon IR. I cancelled. So tan phi equals to XL minus XC upon R. यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया tan phi का। अब क्या करना है हमें ये देखना है कि XL की वैल्यू क्या है हमारे पास। XL इक्वल्स टू ओमेगा L एंड XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC अप्लाइड। अब क्या करना है, अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, तो इसका मतलब XL बढ़ेगा और 1 बाई XC कम होगा। और इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी XL विल इंक्रीज एंड XC विल डिक्रीज। सिमिलरली ऑन डिक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ओमेगा XL विल डिक्रीज एंड XC विल इंक्रीज। अब होगा क्या, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बढ़ रही है, एक रेजिस्टेंस कम हो रही है ओमेगा कम चेंज करने से। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा पे क्या होगा, XL इक्वल टू XC हो जाएगा एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो XL विल बी इक्वल टू XC एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा R. ओमेगा R इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है हमारी। इफ आई टॉक अबाउट न्यू R, ओमेगा R बाई 2 पाई। अब हमारा टास्क है ओमेगा R निकालने का, तो ओमेगा R चलो निकालते हैं फिर हम। ओके, सो यहाँ XL इक्वल टू XC दिख रहा है हमको एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा R। पहले पुट कर लेते हैं, XL क्या होता है ओमेगा L, यहाँ R लगाना पड़ेगा इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। यहाँ से ओमेगा R निकालेंगे तो ओमेगा R स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई LC और ओमेगा R इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट LC और न्यू R इक्वल्स टू ओमेगा R बाई 2 पाई। दैट मीन्स न्यू इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, रेजोनेंस की, तो ये काम हो गया। आप देखते रेजोनेंस होगा तो होगा क्या। एट रेजोनेंस की हम अगर बात करें, एट रेजोनेंस ये पता लग गया XL इक्वल टू XC। तो रेजोनेंस पे क्या करेंगे, XL इक्वल टू XC पुट करेंगे इम्पीडेंस के अंदर। Z कितना था हमारा, Z था अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, XL इक्वल टू XC, तो यहाँ XL इक्वल टू XC क्या हो गया, इक्वल करेंगे तो यहाँ 0 आ गया और Z बच गया अंडर रूट R स्क्वायर। दैट मीन्स Z इक्वल्स टू R। अब यहाँ नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट इज इक्वल टू ओनली द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, प्योर रजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल्ड आउट, कैंसिल। Now the resistance of this LCR is minimum. So LCR circuit will offer minimum resistance at resonance. If resistance is minimum, then current will be maximum and power equals to I square R. We can write maximum power. So these are the condition of resonance. Find करना resonance कैसे लिखना होता है, current maximum करेगा maximum, power maximum और resistance
मिनिमम। ये हमारी कंडीशन हो गई रेजोनेंस की। चलिए अब फिर डिस्कस करते हैं tan phi के बारे में, वापस आते हैं tan phi पे। तो tan phi हमारा ये था XL माइनस XC अपॉन R। इफ XL ग्रेटर देन XC देन tan phi will be equal to positive, that means phi is पॉजिटिव। फाई पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ फाई है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट इधर है तो वोल्टेज ऊपर जाती है। तो एक्सएल अगर बड़ा हुआ एक्सी से, दैट मीन्स दिस LCR इज इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट। यहाँ इंडक्टर का रोल ज़्यादा है एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस या इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट। अगर हम बात करते हैं एक्सएल लेस देन एक्सी, देन tan phi इक्वल्स टू नेगेटिव, दैट मीन्स फाई ऑल्सो नेगेटिव। फाई नेगेटिव आएगा तो इधर आएगा कहीं नीचे। फाई नीचे का मतलब क्या है, वोल्टेज नीचे है, पीछे, दैट मीन्स लैग करती है, तब ये क्या बनेगा, कैपेसिटर। तो फिर बन जाएगा कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। अब हमने अभी देख ही लिया कि एक्सएल अगर एक्सी इक्वल टू होगा तो क्या होगा, फाई ज़ीरो, दैट मीन्स करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस। तो ये फंडा है LCR का। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ तक कवर होते हैं। अभी थोड़ा आगे चलना है हमको, यहाँ देखते हैं क्या क्या होता है इसके बाद। अब हमको करना है रेजोनेंस कर्व, क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर। ओके, क्वालिटी फैक्टर पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि LCR हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते हैं कि रेडियो और टेलीविज़न जो होते हैं, रेडियो की ट्यूनिंग करनी होती है, हमको किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे आवाज़ सुननी है, कोई सॉन्ग सुनना है, या टीवी को किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करना है, कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल सुनना है, आपको देखना है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं LCR। और यहाँ कर रहे हैं बात हम ट्यूनिंग की, क्वालिटी फैक्टर की, कि कितनी आसानी से हम लोग किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को गेन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वालिटी फैक्टर पे। तो क्वालिटी फैक्टर बताएगा कि सर्किट की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी फैक्टर का अगर हम बात करते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और voltage across capacitor to the voltage across resistor at resonance. This is defined as quality factor or Q factor. So quality factor of LCR circuit is defined as the ratio of voltage across inductor or capacitor to the voltage across resistor at resonance. So now we will find out the value of quality factor. Now Q equals to VL upon VR. VL is omega L, sorry, VL equal to IXL and VR equals to IR cancelled. XL equals to omega L, omega we are talking about resonance. Okay, now R. So Q equals to L by R into omega R. Now we know the formula of omega R equals to 1 by under root LC। तो यहाँ रख दो 1 बाई अंडर रूट LC। इसको सॉल्व करेंगे तो Q आएगा L रूट नीचे R, दोनों के ऊपर रूट है तो रूट L रूट C, ये कैंसिल्ड। सो वी गॉट Q इक्वल्स टू 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब सेकेंड पार्ट, यहाँ से हम सेम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे VC बाई VR से। ये आपका होमवर्क है। ट्राई Q इक्वल्स टू 1 बाई R अंडर रूट L बाई C यूजिंग VC अपॉन VR। ट्राई योर सेल्फ एंड वेदर यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट, राइट ए कमेंट। नाउ ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर। अब हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ क्या है, रेजोनेंस कर्व क्या होता है। रेजोनेंस कर्व इज द ग्राफ बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड मैक्सिमम करंट इन द LCR। ग्राफ की शेप ऐसी बनती है इस तरह से, सिमेट्रिक। एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R वी आर गेटिंग द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। दिस इज़ फॉर लेट R1, दिस इज़ फॉर R2। ये रेजिस्टेंस यहाँ हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस
2 बड़ी है, रेजिस्टेंस R1 छोटी है, क्योंकि करंट दिख रहा है, करंट इसमें ज़्यादा जा रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कम है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओमेगा आर, ये हो गई हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस का मतलब क्या है हमारा, जहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की पीक मिल रही है, वो हमारा रेजोनेंस है। अब कुछ साथ में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के साथ और कुछ फ्रिक्वेंसीज भी होती हैं जिनको बोलते हैं साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज। यहाँ मेरा हो गया, मान लिया ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, यहाँ ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा इज़ द साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज जो साथ में आ रही हैं इसके, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ हो गई इसकी ग्राफ की, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। अब बैंड विड्थ की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला क्या आ गया, इसको दिखाते हैं बीटा से। और बीटा का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। तो बीटा कितना हो गया, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा, कैंसिल्ड। सो साइड जो बैंड विड्थ हमारा आ गया 2 डेल्टा ओमेगा, एंड डेल्टा ओमेगा इज द साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, ओमेगा आर इज द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताता है हमें क्वालिटी ऑफ द सर्किट। जितना सर्किट, जितना ग्राफ हमारा शार्प होगा उतनी अच्छा सर्किट होगा, उतनी इजीली हम लोग किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को अचीव कर सकते हैं आसानी से। ये हमारा हो गया रेजोनेंस कर्व, इसको इम्पीडेंस कर्व भी बोलते हैं हम लोग। अब हमारा आगे चलने वाला काम है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, पावर की हम बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है I इंटू ई। अब हमारे पास ई कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लेते हैं करंट हमारा कुछ फेज डिफरेंस है फाई, तो करंट लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। वैल्यू क्या है फाई की हमें नहीं पता है, वी विल कैलकुलेट इट लेटर इन स्पेशल केसेस। अब निकालना है हमको पावर, फिर निकालेंगे एवरेज पावर। तो पावर अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो पावर निकालने के लिए पहले आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ खोलते हैं इसका पावर, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ किया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया आंसर P इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं चलो इसको थोड़ा सा। पावर हो गया मेरा कितना, पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट, यहाँ खोलना पड़ेगा इसको, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये इसकी आइडेंटिटी लगा दी है, कॉस फाई साथ में है, प्लस यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन 2 ओमेगा टी का 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहाँ साइन फाई, 2 कॉमन आएगा यहाँ से भी यहाँ से भी, तो पावर हो गया मेरा आई नॉट ई नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। अब हमारा टास्क है एवरेज पावर निकालने का। ये बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बस, कुछ नहीं करा। ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट ले लिया विद फेज एंगल फाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला और आराम से मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पहुँच गए। अब हमारा टास्क है एवरेज पावर निकालने का। तो फॉर्मूला हमको पता ही है एवरेज निकालने का, तो एवरेज बात करेंगे, एवरेज पावर की बात करते हैं। यहाँ हो गया मेरा इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 बाई टी ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये बाहर चल रहा है हमारा पहले से ही। अब पुट करते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई प्लस
साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई इंटू डी टी। ब्रेक करना पड़ेगा, पार्ट में सबको अलग अलग करते हैं। चलो, P इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट बाई 2t ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू कॉस फाई 0 टू टी, ये फिर यहाँ माइनस कॉस फाई कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, वो भी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस ये वाला साइन फाई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी। यहाँ डी टी करना भूल गए हम, डी टी ये हो गया और यहाँ भी डी टी। अब सॉल्व करते हैं इसको। एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट बाई 2t। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी, डी टी 1 है तो यहाँ t आ गया, साथ में कॉस फाई कॉन्स्टेंट भी है, माइनस कॉस फाई। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 0 टू टी इज 0। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन भी 0, तो यहाँ आया 0। क्या बचा? एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट बाई 2t इंटू टी कॉस फाई, टी टू टी कैंसल्ड, एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट बाई 2 कॉस फाई। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। इसको लिखेंगे आई नॉट बाई रूट 2 इंटू ई नॉट बाई रूट 2 कॉस फाई, एवरेज पावर इक्वल्स टू आई आर एम एस ई आर एम एस इंटू कॉस फाई। नाउ कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। Okay, because IRMS, ERMS is the DC power and we are getting this AC power multiply by cos phi, तो cos phi यहाँ पावर फैक्टर हो गया। इट विल डिसाइड कब पावर मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। अब हम बात करते हैं cos phi। इफ़ cos फाई या फाई की हम बात करते हैं, फाई 0 हुआ, देन कॉस फाई इक्वल टू 1 एंड एवरेज पावर इक्वल्स टू आई आर एम एस ई आर एम एस, दिस इज मैक्सिमम पावर हो गया। जब कॉस फाई 1 हो गया, इसका मतलब फाई 0 था, तो फाई 0 कब होता है? जब रजिस्टर ओनली इज द पार्ट ऑफ एल सी आर, एल सी आर के अंदर केवल रजिस्टर है, तो एल सी आर सर्किट विल बिहेव लाइक ए प्योर रजिस्टिव सर्किट जब cos फाई 1 हो गया। इफ फाई इक्वल टू 90 देन cos फाई इक्वल टू 0। cos फाई 0 मीन्स एवरेज पावर इक्वल टू 0। अब cos फाई 90 हुआ तो पावर 0 हो गई। जो करंट फ्लो कर रहा है LCR के अंदर, अगेन दैट इज वॉटलेस करंट, and this LCR circuit will behave like a pure inductive or capacitive circuit because in both the cases power in inductive circuit, power in capacitive circuit is 0। तो ये पावर 0 दिखा रही है यहाँ पे। ये होगा हमारा पावर फैक्टर का कंसेप्ट। cos फाई की वैल्यू डिपेंड करती है फाई पे, और फाई करती है कि कौन सा डोमिनेंट है, इंडक्टर, कैपेसिटर या रजिस्टर। ये काम होगा हमारा LCR सर्किट का। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर हम। पहला ही क्वेश्चन जो कॉमन है, कई साल आ चुका है, बार बार आ रहा है, अभी भी बहुत चांसेस है उसको आने के। अभी ट्राई करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है हमको, इस तरह से मिलेगा ग्राफ, जिसके अंदर 3 वेव्स बनी हुई है दिस वे। एक, दो और तीसरा हो गया दिस वे। यहाँ 3 ग्राफ दे रखे हैं हमको। सबसे पहले पूछेगा, ये मान लिया मैंने, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें क्या पूछता है मेरे को, पहले पूछेगा ए बी सी क्या है,
ये डिवाइस कोई एक्स का ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर इन ए डिवाइस एक्स इज एज सोन इन द फिगर। व्हाट इज एक्स, डिवाइस का नाम बताना है, कौन सी डिवाइस का ग्राफ बन रहा है, और ए बी सी क्या है, कौन सा करंट है, कौन सा वोल्टेज है, कौन सा पावर है, वो बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर कैसे देखना है। जिस वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंचा वाला ग्राफ जो है, दैट इज़ पावर। तो यहाँ हो गया ए। अब बात करते हैं करंट और वोल्टेज की। तो यहाँ करंट वोल्टेज में दो चीज़ें होती हैं देखने के लिए। जनरली हम क्या करते हैं, वोल्टेज स्टार्ट करती है 0 से, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता, करंट भी कर सकता है 0 से स्टार्ट, वोल्टेज आगे पीछे हो सकती है। तो हमें क्या देखना है, ये एक कंडीशन है इसके अंदर कि वोल्टेज से करंट हमेशा कम रहेगा। तो चेक द एम्पलीट्यूड ऑफ अदर टू ग्राफ्स, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जैसे ये छोटा एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये बड़ा है, तो सी मेरा क्या हो गया, सी हो गया वोल्टेज, एंड बी हो गया क्या, सॉरी, ए हो गया मेरा करंट। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। कुछ नहीं करना, बस हमें क्या देखना है, ग्राफ दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ग्राफ में देखना है कौन सा इसमें करंट है, कौन सा वोल्टेज है, कौन सा पावर है। सबसे बड़ा ग्राफ जो दिख रहा है वो आपका पावर होगा, उसके बाद जिसका सेकंड नंबर पे एम्पलीट्यूड आ रहा है वो वोल्टेज है, सबसे कम एम्पलीट्यूड वाला करंट होगा। अब बात करते हैं, देखो ये डिवाइस है क्या, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, या इंडक्टर है। अब देखते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर कि करंट ए है और सी वोल्टेज है। सी कर रहा है 0 से स्टार्ट, वोल्टेज कर रहा है 0 से स्टार्ट, करंट चल रहा है ऑलरेडी आगे से 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट चल रहा है आगे, करंट इज लीडिंग, करंट लीड करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करेगा और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करेगी। तो हम सिंपल सा एक डिफरेंस बना देते हैं, तीनों की टेबल बना देते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का। कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। यहाँ डिनोट करेंगे सी, एल और आर से। इसकी रेजिस्टेंस हो गई एक्स सी, इसकी रेजिस्टेंस एक्स एल, इसकी रेजिस्टेंस आर। यहाँ क्या करेगा, कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज बाई π/2, वोल्टेज लीड्स करंट बाई π/2। यहाँ क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेस। अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर यहाँ कितना आएगा, एवरेज पावर 0, एवरेज पावर 0, और यहाँ एवरेज पावर IRMS, ERMS, ये आ गया। ये इनमें डिफरेंसेस हो गए। ओके, यहाँ जो करंट होगा ये इसको बोलेंगे वॉटलेस करंट, क्योंकि पावर 0 आ रही है। यहाँ वॉटलेस करंट, और यहाँ मेन करंट रहेगा, पावर वाला करंट रहेगा यहाँ पे, तो करंट सिंपल लिख दो। ये हो गया डिफरेंस इनमें। अगर हम ग्राफ की बात कर देते, थोड़ा सा और बना देते हैं एक्स्ट्रा इसको, तो यहाँ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वोल्टेज हो गया, करंट चलेगा आगे, तो यहाँ से इसके पैरेलल इस तरह से हो गया, ये करंट, ये वोल्टेज, यहाँ ओमेगा टी। फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो ये हो गया, इधर करंट, इधर वोल्टेज V और I, यहाँ ओमेगा टी। उसके बाद इसका बनाते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहेगी, करंट पीछे रहेगा, ये वोल्टेज हो गया और ये हो गया करंट। थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको, ये हो गया यहाँ पे V I। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ वोल्टेज ओमेगा टी और नीचे 90 से करंट। इसमें बात करते हैं तो दोनों ही सेम फेस में रहेंगे, वोल्टेज और छोटा रहेगा थोड़ा सा
करंट, फिर से डायग्राम, ये हो गया वोल्टेज भी इधर और करंट भी इस तरफ। ये सब में डिफरेंस हो गया कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर में। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं हम लोग। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, कर लेते हैं उसको डिस्कस। एलसी ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। यहाँ एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, तो हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे आपस में, और उसमें एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करेगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। कैसे करेगी इसको डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ लगाया मैंने इंडक्टर, ये लगा दिया कैपेसिटर के साथ। कुछ नया नहीं करना है, ये प्लस, ये माइनस, ये एल हो गया। करंट फ्लो करेगा इस तरफ। तो पहले क्या है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं है, तो चार्ज यहाँ मैक्सिमम है। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई हाफ CV² एंड मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर इज 0। उसके बाद क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा इसमें, कैपेसिटर स्टार्ट करेगा डिस्चार्ज होना। तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और कुछ इसके अंदर करंट आ जाएगा इंडक्टर के अंदर। ये कैपेसिटर था यहाँ पे, तो कुछ चार्ज इसका गायब हो चुका है और यहाँ कुछ करंट आ गया है, आई करंट हो गया एल के अंदर। अब क्या हुआ, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे बच गई, UE नॉट इक्वल टू 0, UBB नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में क्या है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक है, कुछ एनर्जी मैग्नेटिक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है और इंडक्टर के अंदर करंट सप्लाई होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, थर्ड स्टेज में जो कैपेसिटर है फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और करंट सारा का सारा इंडक्टर में पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ये खाली हो गया, U इलेक्ट्रिक 0, U मैग्नेटिक कितनी होती है, हाफ LI²। यहाँ चार्ज मैक्सिमम था, यहाँ करंट मैक्सिमम है, पूरे की पूरी एनर्जी चली गई है मैग्नेटिक की फॉर्म में, आई करंट हो गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेज में, तो यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अब इंडक्टर में जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, उससे आएगा इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस मेन करंट को अपोज करेगा। तो फोर्थ डायग्राम में हम क्या बना सकते हैं, ये वाला करंट फ्लो करेगा वापस। अब यहाँ हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज होगा अपोजिट ऑफ, तो ये धीरे धीरे प्लस, ये माइनस, करंट फ्लो कर रहा था इस तरफ। अब क्या करेगा, करंट पहले उस तरफ जा रहा था, अब उल्टा आएगा, यहाँ इस तरफ से जाएगा L। अब क्या होगा यहाँ पे फिर से, U इलेक्ट्रिक नॉट इक्वल टू 0, U मैग्नेटिक नॉट इक्वल टू 0। फिर चलते हैं थोड़ा आगे, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, यहाँ कैपेसिटर अगेन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फिर से क्या हुआ, करंट गायब हो गया और यहाँ U इलेक्ट्रिक हाफ CV², अगेन U मैग्नेटिक 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक थी, इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं थी। उसके बाद कैपेसिटर जैसे ही डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, करंट बढ़ता गया, करंट कुछ बीच का पार्ट देख लिया हमने, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में है और कुछ एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। थर्ड केस में हमने क्या दिखा दिया कि पूरा पूरा करंट बढ़ चुका है, मैक्सिमम हो चुका है करंट, और इलेक्ट्रिक एनर्जी गायब हो चुकी है, सारा चार्ज जा चुका है। देन रिवर्स होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, बट अब पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट होगी करंट की वजह से, और फिर से धीरे धीरे कुछ एनर्जी आएगी इलेक्ट्रिक, कुछ मैग्नेटिक, देन फिर से कंप्लीटली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और फिर से साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में, कभी इंडक्टर के पास कभी कैपेसिटर के पास। ये होता है एलसी ऑसिलेशंस। ओके, इतना ही है बस, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो हमारा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर से, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे अभी हम लोग। हमारे पास 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। Transformer is a device which is used to vary the AC voltage or current. Means we can decrease the value of current and voltage, we can increase also. So there are 2 types of transformer, step up and step down. Step up transformer क्या काम करता है, step up transformer voltage को बढ़ाएगा, current को कम करेगा, and step down transformer voltage को कम करेगा, current को बढ़ाएगा। दोनों भी हम क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अभी हम लोग। तो पहले आता है प्रिंसिपल, क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर।
is the mutual induction, or we can say electromagnetic induction. In a single word, we will define the principle, or we can state the principle of transformer as transformer works on the principle of mutual induction or electromagnetic induction. Transformer. So just we will draw a diagram. डायग्राम बहुत सिंपल है, इसका आराम से बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जब भी डायग्राम बनाएंगे आप लोग पेपर के अंदर, यू मस्ट यूज़ स्केल एंड पेंसिल, दैट विल बी ए गुड इंप्रेशन इन द आंसर सीट। तो यहाँ करेक्ट करेंगे हम लोग प्राइमरी कॉइल्स, इनपुट AC, and here secondary coil, output. So यहाँ primary coils P, secondary coil S. Number of turns in primary NP, number of turns in secondary NS. Current in primary IP, current in secondary IS, voltage in primary VP, voltage in secondary VS, EMF in primary EP, EMF in secondary ES. These are the parameters we are going to discuss. तो यहाँ क्या हो गया, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर कोर बना लिया मैंने, लेमिनेटेड कोर होती है ये, और कॉपर वायर लगाई हुई है इंसुलेटेड दोनों साइड। अब ये देखना है कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा है तो स्टेप अप, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है तो स्टेप डाउन, ये इसका रोल होता है। हम प्रूफ करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न से क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पैरामीटर्स हो गए P4 प्राइमरी, S4 सेकेंडरी, करंट, वोल्टेज एंड EMF। तो हम ये मान लेते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी लो है, और इनपुट करंट भी लो है, बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत कम भी नहीं है। तो उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, हम ये एज्यूम कर सकते हैं EP इक्वल्स टू VP और ES इक्वल्स टू VS। इसका मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है हम भी मान लेते हैं ऑलमोस्ट इतना ही EMF इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर, और जितना हम लोग इंड्यूस EMF हमारा फाइनल सेकेंडरी में हो रहा है उतना ही वोल्टेज हमारा आउटपुट मिल रहा है। इसलिए हमने माना है कि रेजिस्टेंस आउटपुट और इनपुट की कम है, रेजिस्टेंस इनपुट में कम लिया है हमने, बहुत इनफाइनाइट करंट नहीं लिया है। तो हमको पता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, EP निकालना है, कितना आएगा -NP d∅/dt। हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं कि जितना फ्लक्स इनपुट में है उतना ही आउटपुट में है, तो d∅/dt। सिमिलरली ES इक्वल्स टू -NS d∅/dt। अगर रेशियो निकाल देंगे तो ES या EP अपॉन ES इक्वल्स टू NP अपॉन NS, और अपोजिट लिखेंगे तो ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ES अपॉन EP, EMF और नंबर ऑफ टर्न्स। हमने क्या लिया है, बट वी हैव assumed ES अपॉन EP इक्वल्स टू, ये VS के इक्वल है, ये VP के इक्वल है, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमको यहाँ से, VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ NS अपॉन NP को क्या बोलते हैं हम लोग, NS अपॉन NP इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये डिसाइड करेगा, इसको बोलते हैं K मोर देन 1 स्टेप अप, K लेस देन 1 स्टेप डाउन। इफ K 1 आ गया तो 1-1 कंडीशन, दैट मीन्स जितना इनपुट करंट है, जितना इनपुट वोल्टेज है उतना ही आउटपुट मिल रहा है हमको। तो ट्रांसफार्मर का कोई रोल अभी यहाँ पे फिर नहीं है, जस्ट कपलिंग कर रहा है, सप्लाई कर रहा है करंट को, आगे कम ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो चलते हैं, चलो आगे फिर हम
तो वी एस अपॉन वी पी आ गया एन एस अपॉन एन पी। हमको ये पता है क्योंकि पावर लॉस अभी इनको एज्यूम किया है कि नहीं है इसके अंदर, तो इनपुट पावर कितना हो गया इक्वल टू आउटपुट पावर, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो इनपुट पावर आउटपुट पावर कितना हो गया, अगर मैं बात करता हूँ पावर आउटपुट की तो पी आउटपुट कितना हो गया आई सेकेंडरी और वी सेकेंडरी, पावर इनपुट कितना हो गया आई प्राइमरी इंटू वी प्राइमरी। इसका मतलब क्या हुआ, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। P आउटपुट इक्वल्स टू P इनपुट है, दैट मीन्स आई एस वी एस इक्वल्स टू आई पी वी पी और वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। ये नया फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन 4। ये आ गया रिलेशन करंट और वोल्टेज में। ओके अब चलते हैं आगे, तो यहाँ कंबाइन कर लेते हैं इनको। वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। नाउ वी एस इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी इंटू वी पी। क्या करेंगे अब हम, वी एस निकालना है इन टर्म्स ऑफ वी पी। अब देखना है कि स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, नंबर ऑफ टर्न से क्या फ़र्क पड़ेगा। इफ़ ns greater than np, that means ns upon np will be greater than 1, which implies vs greater than vp। स्टेप अप, वोल्टेज राइज कर गया सेकेंडरी का तो स्टेप अप हो गया। अब स्टेप अप में वोल्टेज तो बढ़ गई, अब देखना है करंट का। नाउ वी हैव vs अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी किसके इक्वल है, आई पी अपॉन आई एस के, आई पी अपॉन आई एस। अब इस बॉक्स को ले लेते हैं करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का। यहाँ से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स देख लिया हमने। अब आई एस अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, आई एस इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस इंटू आई पी। अब क्या होगा, हमने क्या लिया है, इफ एन एस ग्रेटर देन एन पी देन एन पी बाई एन एस विल बी लेस देन 1, दैट मीन्स आई एस लेस देन आई पी। ये कंडीशन है स्टेप डाउन की हम बात कर रहे थे, सॉरी स्टेप अप की हम बात कर रहे थे। तो क्या हो गया, स्टेप अप में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगी, वोल्टेज सेकेंडरी ज़्यादा होगी और सेकेंडरी करंट कम हो जाएगा। ये हो गया। अब 4 स्टेप डाउन हम बात करते हैं। स्टेप डाउन इसका उल्टा कर देते हैं, एन एस लेस देन एन पी, वी एस लेस देन वी पी और आई एस मोर देन आई पी। ये हो गया ट्रांसफार्मर के सारी थ्योरी डिस्कशन हमारी हो चुकी है, प्रिंसिपल से लेके करंट, पावर, वोल्टेज। अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो चलो लिखते हैं एफिशिएंसी भी और उसके बाद करेंगे पावर लॉस। ओके, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर noted by a letter eta and it is equal to output power upon input power। हमने क्या लिया है, आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है जिसमें हमने इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल लिया है। ऐसा रियलिस्टिक नहीं है, वो आइडियल केस है, कहीं ना कहीं लॉस होगा। ट्रांसफार्मर के केस में बहुत सारे लॉस होते हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा पावर फैक्टर क्या रहेगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज ईटा शुड बी लेस देन 1। आइडियल केस में ईटा बनाना चाहिए बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं क्यों नहीं होता है। पावर लॉस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ रखा है हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि हम एसी यूज़ कर रहे हैं बार बार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब प्लस होगा तो मैग्नेटाइजेशन होगा और माइनस होगा तो डीमैग्नेटाइजेशन। तो कंटिन्यूसली बराबर चल रही है साइकिल यहाँ पे, तो हर साइकिल में एनर्जी लॉस होगा, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। उसकी बात करते हैं फिर हीट लॉस। करंट फ्लो करेगा कोर गैस अंदर से तो हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी निकल रही है फालतू में यहाँ से, हीट लॉस हो गया। उसके बाद कॉपर लॉस, कॉपर की जो वायर है बार बार हीट होगी, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा
तो उस मटेरियल का भी प्रॉपर्टीज़ लूज़ करेंगी, लॉस होगा। आयरन लॉस, जो फ्रेम है, बॉडी है ट्रांसफार्मर की, वो आयरन की बनी हुई है, तो वो बार बार हीट होगी, ड्यू टू एडी करंट उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डैमेज होती हैं, लॉस। उसके बाद हमारा ह्यूमिंग लॉस। आपने देखा होगा जब भी ट्रांसफार्मर चलता है, किसी गली मोहल्ले में देखा होगा आपने, ट्रांसफार्मर चलता है, ऑन रहता है, तो उसके अंदर से एक बीप साउंड आता रहता है, जिसको ह्यूमिंग लॉस बोलते हैं। साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई एनर्जी लॉस हो रखी है। ये कॉमन लॉस हमारे पास है ट्रांसफार्मर के अंदर। हम बात कर सकते हैं एडी करंट की भी, एडी करंट की वजह से भी यहाँ लॉस हो रहा है। उसके बाद हमारा चैप्टर द एंड। सो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, कोई इंपॉर्टेंट सा देखेंगे अभी हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक घंटे के अंदर पूरा सारा चैप्टर, सारे क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम वाइंड अप करेंगे एक नेक्स्ट एक आवर में, पूरा ईएम वेव चैप्टर जो 3 नंबर का आता है जनरली। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, और ध्यान से एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा सारा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी, कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, कैसे सीयूईटी में आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।